देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। Dehino asmin, asmin dehi, this individual body, the indweller in this body. Indweller in this body? You, the mind and intellect. You, the individuality who is temporarily at this moment present in your body. The body is the hutman in which you are living. You are tenants, temporary tenants in that body. And in the body, who lives? In this body, I live. And I cannot live in your body. If anybody wants to meet me, they have to come to this body and knock me. Hey, Swami. And then the Swami will answer. If you go and knock anybody and say, Swami, Swami, he will say, what? What is Swami? Shut up. There is no Swami here. Isn't it? Swami is not living in you. Swami is living here. Thus, each individual lives in his own body as a tenant. And the landlord is a very strict fellow. Rent is not paid every week. No, no. He doesn't believe that you will... he has no belief in you that you may not pay at the end of the week. Then, every day, 3 times you pay. You know that car park, you go and feed every half an hour you get to go and feed. Similarly, every 2.5 hours you have to pay your rent if you want to remain in this body. No, I can't go on paying it. All right, die. Why? You will be ejected out of the tenement. You have to pay your rent 3 times a day. Breakfast, lunch and dinner. Not only that, the landlord will not look after the maintenance of this house. You have to look after it. Think of this situation. You have to look after its maintenance outside and inside, and you pay the rent regularly. It's automatic. It'll demand. You forgot it. You will not forget it because by lunchtime you will remember it. I mean, it's automatic. Reminders are given. You pay for it. Right? And when the time comes, you are ejected out. So then here, just as in this very same body, you remain the same, even though the status or your condition changed from childhood to youth and to old age. In the same way, tatha, dehantara prapti. There is perfect continuity. There is never a moment when you don't exist at all. You leave this body and this environment, and you reach another body conducive for your rest of your experiences. आज का श्लोका का पहले अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। पहला अर्थ क्या है? देहिनो अस्मिन् यथा देहि कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् अथा यथा देहि, अर्थात इस शरीर में जब तक जीवात्मा है उसका 3 अवस्थाएं हैं, जैसे कि बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था इस देह का होता है। वैसे ही इस शरीर के बाद भी एक अवस्था होती है जिसको इस शरीर के बाद भी एक अवस्था रहती है जिसको धीमताम का अर्थ है जो आत्मज्ञान से
भरपूर ज्ञानी, वैसे लोग उस चारवें अवस्था को भी, चारवें अवस्था को जान के, उसके बारे में जान के घबराते नहीं है, स्थिर होते हैं, मतलब निडर होके रहते हैं। तो ये श्लोका कहती है कि हमारा जीवात्मा का चार अवस्थाएं जैसे होते हैं, इस देह में जीवात्मा के चार अवस्थाएं होते हैं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था। ऐसे ही शरीर प्राप्त हो जाने के बाद भी इस शरीर का और एक अवस्था रहती है जिससे कि ज्ञानी लोग डरते नहीं है, जानने के बाद अधैर्य नहीं होता है, धैर्य से रहते हैं। तो ये इस श्लोका का अर्थ है। इसका थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, व्याख्यान करेंगे कि ये श्लोका क्या कह रहा है। तो ये श्लोका कहता है कि देहिनोस्मिन् यथा देहि, अर्थात हम पहले से ही कहे हैं कि देह का मतलब जो दहन हो जाता है, मतलब जो नष्ट होता है वो देह है, शरीर है। तो इस शरीर चार अवस्था से गुजरता है। पहला तीन क्या है आप जानते हैं, वो है बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था। ये तीन अवस्थाएं हमारे आँख को दिखता है, बचपन, यौवन, वृद्ध, हम सब देखते हैं, महसूस करते हैं, जानते हैं, इसीलिए हम इसको सच मानते हैं। लेकिन इस शरीर के बाद भी और एक अवस्था है जो आँख को दिखता तो नहीं है लेकिन है। शरीर जैसे, हम जैसे बाल्यावस्था से यौवन अवस्था, यौवन से वृद्ध को धीरे धीरे जाते हुए हमें कुछ महसूस नहीं करते, कुछ रिएक्शन, प्रतिक्रियाएं नहीं करते, बहुत आसानी से उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो अवस्थाओं को, वो परिवर्तन को बहुत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ही हमारा ये आत्मा वृद्धावस्था के बाद, जब ये शरीर और कोई काम नहीं कर पाएगा, तब वो आत्मा क्या करती है, और एक अवस्था में चली जाती है। पहले तीन जैसे एक अवस्था थे, वो भी एक अवस्था ही है, वो है आपको दिखता नहीं, इसीलिए हम उसे सच नहीं मानते, लेकिन वो भी एक अवस्था है, वो है आत्म स्वरूप, वो आत्म अवस्था है। उस अवस्था भी हमारा ही है, आत्मा का ही है। तो हमारा चार अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था और आत्म स्वरूप, आत्म अवस्था, जिसमें कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा रहती है। वो आत्मा क्या है, जब तक इस शरीर में रहती है हम खुद को व्यक्त करते हैं, वो आत्मा खुद को व्यक्त करता है। जब आत्मा शरीर से चारवा अवस्था में जाती है, खुद को व्यक्त नहीं कर पाता है, अव्यक्त अवस्था में रहती है, इसीलिए हमें दिखता नहीं है और हमें उसे सच नहीं मानते। लेकिन ये गलत है। जब हमें आत्मज्ञान का बोध होता है तो हम जैसे ये तीन अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, अति सहज और सरलता से भाव, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जो बच्चा बढ़ता है उसको देख के खुश होते हैं ना हम। बच्चा छोटा रहता है, बड़ा होता है, फिर यौवन होता है, मध्यावस्था को जाता है, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था तक आ जाते हैं। ये सब तो नेचुरल सर्किल चलता ही रहता है। ये तीन अवस्था तक ठीक है, लेकिन ये तीन के बाद चारवा अवस्था ही हमें मुश्किल लगती है। लेकिन वो भी तो एक अवस्था है शरीर का, हम क्यों उस अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाते? क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है। हम सोचते हैं कि ये आत्मा जो इस शरीर में था अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहीं पर ही है। वो आत्मा कहीं नहीं गई है, शरीर छोड़ी है, लेकिन दूसरे एक शरीर में खुद को फिर अभिव्यक्त करने का समय हो गया है। इसीलिए इस पुरातन शरीर को छोड़ के नया शरीर के लिए वो ये शरीर को छोड़ दिए, लेकिन वो भी एक अवस्था है। इसीलिए हमें अधैर्य नहीं होना चाहिए, धैर्य से रहना चाहिए बोलते हैं। तो हम जब तक कर्म दोष रहता है, हमारा जब तक कर्म दोष रहता है, तब तक हम ये चार अवस्था में रहते हैं। अर्थात ये उपाधि व ये शरीर चार अवस्था में रहता है। कर्म दोष का अर्थात ये अवस्था घूमता रहता है, हम बार बार पैदा होंगे,
फिर हमारा मृत्यु होगा, फिर बाल्य, यौवन, वृद्ध, फिर आत्मा की स्थिति। फिर हम वो आत्मा, फिर जो कर्म तो दोष है, कर्म दोष का अर्थ क्या है कि हम निष्काम कर्म नहीं किए हैं, हमारा काम जो है वो शून्य हो जाना चाहिए। मतलब कर्म ना हमारा सुख का कर्म हो या दुखी का, मतलब अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, जो भी काम करे आपको फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है, जब तक आपका संचित कर्मा सब नील ना हो जाता। मतलब अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म, दोनों प्लस और माइनस नील हो जाना चाहिए। आपके संचित कर्मा जब तक है तब तक ये जीवन मृत्यु का चक्र ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब आप ये चारों की स्थिति को ऊपर और एक स्थिति है जो है मोक्ष। मतलब आपको अगर मोक्ष चाहिए तो ये कर्म बंधन से बाहर आना है, कर्म दोष से बाहर आना है। कर्म दोष अर्थात क्या है, हमें निष्काम कर्म एक करना है। मतलब कोई भी काम करे उसका फल के आस बिना ही करे। और एक हम कोई काम जब करे कर्ता भाव से ना करे। अगर आप उसको कर्ता भाव से करते हैं तो उसका पुण्य और पाप दोनों आप ही को आता है। पुण्य भी आएगा तो पुनर्जन्म होगा, अच्छे से फिर से जन्म लेना पड़ता है। पुण्य भी हो तो आपको भुगतने के लिए फिर ये उपाधि चाहिए, पाप भी हो तो भी ये उपाधि ही चाहिए। फिर ये उपाधि से बाहर आना है तो आपको निष्काम कर्म करना है और कर्ता भाव से बाहर आना है कि मैं ये काम का कर्ता नहीं हूँ, हर चीज मुझसे करवाया जा रहा है, मैं एक माध्यम हूँ, केवल एक माध्यम, उस परमात्मा का एक माध्यम हूँ, एक व्यक्त अवस्था हूँ। अगर आप सोच के करते हैं तो आप निष्काम कर्म करते हैं, तभी आप कर्म दोष से बाहर आ जाएंगे। कर्म दोष से बाहर आते हैं मतलब ये जीवन चक्र से बाहर आएंगे। जन्म जन्म और मृत्यु और ये चार अवस्थाएं, बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, आत्मावस्था से बाहर आके मोक्ष अवस्था में जाएंगे, अर्थात मोक्ष में परमात्मा की के साथ। सभी आत्मा का यही एक लक्ष्य है। हर आत्मा वही परमात्मा से मिलने के लिए ही बार 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 जन्म लेता है, इतने सारे यात्रा करती है। हर आत्मा जो अभी आप देख रहे हैं, आपके साथ जितने भी आत्मा है, शरीर है, आपके साथ जितने भी रिश्ते हैं, वो रिश्ता सब एक एक सुंदर सा आत्मा ही है। वो जैसे भी आपसे आपका उनके साथ उनका आपके साथ जैसे भी हो प्रवर्तन, वो आप उनका और आपका वो कार्मिक अकाउंट की वजह से ही हो रहा है। लेकिन हर चीज एक बहुत सुंदर आत्मा है, अर्थात परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा का व्यक्त अवस्था है सृष्टि को पूर्ण करने के लिए, इस सृष्टि का चक्र को चलाने के लिए आत्मा का वो परमात्मा का एक अवस्था है। तो हर एक आत्मा फिर से वो परमात्मा से मिलना चाहता है, तो इसीलिए वो मोक्ष के तरफ ही दौड़ता है, मोक्ष के तरफ। कुछ आत्मा है मतलब आगे रहते हैं और कुछ पीछे, लेकिन हर आत्मा का लास्ट जो गम्य है, मतलब लक्ष्य है, वो है परमात्मा को पहुंचना। इस दौड़ में, इस यात्रा में कुछ जो देखिए साधु परमात्मा, हम जिसके जिन लोगों को हम अनुकरण कर रहे हैं वो परमात्मा की वो मोक्ष आत्मा है, लेकिन हम उस तरफ प्रयास तो कर रहे हैं, उस तरफ यात्रा कर रहे हैं। हमसे भी कुछ आत्माएं हैं, उनका प्रयास शायद शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कोई ना कोई जन्म होगा जिसमें कि उनका भी वो यात्रा फिर से शुरू होगा। ये है कर्म चक्र। कर्म चक्र से हम जब बाहर आएंगे तभी हम उस मोक्ष स्थिति में मोक्ष स्थिति को पार कर पाएंगे। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि हम सब ऐसे काम करें जैसे कि हम ये चारों अवस्था से मोक्ष अवस्था तक पहुंच जाएं, और वो लोग जो ये तीन स्थिति को सच मानते हैं और चारवा को सच नहीं मानते हैं, उनके लिए कहा गया है कि वो भी शरीर का एक ही, इस आत्मा का एक अवस्था है, वो भी उतना ही सच है।
इसीलिए अधैर्य होने की कोई बात नहीं है। ये है मैम इस श्लोका का अर्थ। सभी को धन्यवाद। आज मैं सिर्फ 13 श्लोका ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, 14 कल एक्सप्लेन करूंगी। आज थोड़ा मुझे घर में बहुत ये था। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank कोई you, और ma'am। कुछ बोलना चाहता है या क्या समझे तो ये प्लीज श्लोका तो प्लीज। बहुत अच्छा है। आप सभी अपना पॉइंट दे सकते हैं, अपना अपना व्यू। इतने इतने अच्छे श्लोका हैं, और हो सके तो इस श्लोका को सब हर कोई याद करेंगे ना, तो कभी भी आप किसी को कुछ समझाते वक्त ये श्लोका कहेंगे, उसका एग्जाम्पल देंगे, तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, और आप भी बहुत अच्छा सा वो आत्मज्ञान को समझा सकेंगे। इसीलिए कुछ श्लोकास को याद रखना है। सेकेंड अध्याय में ये श्लोका, इसके बाद 14th वाला श्लोका, 12th श्लोका, ये सब याद रखने वाले हैं। 11th to 14th तो ऐसे ही याद रखना है। बहुत अच्छे श्लोका है। और प्लीज आप सभी भी थोड़ा थोड़ा बोलिए, ये तो बहुत अच्छा श्लोका है। सभी को इस श्लोका के बारे में बहुत ज्ञान, मतलब सब जानते हैं। प्लीज। मैम हेलो। सब हाँ लोगों को बोलिए। धन्यवाद। आत्मवंदन हाँ सभी लोगों को। बोलिए। मैम चारवा अवस्था बोले ना, हाँ आत्मा। आत्मा हाँ आत्मावस्था। हाँ आत्मावस्था मतलब वो आत्मा ऐसे एक अवस्था में होती है जिसको व्यक्त नहीं कर पाती है। आत्मा है, आत्मा क्या है? आत्मा जो सोल है वो शक्ति और चित्त और ज्ञान का एक स्वरूप है। तो वो है, हमेशा है। मैं जैसे और एक श्लोका में भी बोली थी, आज जब बाहर की हवा रहती है, अंदर भी हवा होती है, जब वो दोनों हवा को दूसरा करने वाला क्या है? वो जो सेपरेट क्या करता है, वो मटका सेपरेट जैसे करता है, वैसे ही हमारा शरीर बाहर का जो परमात्मा है। हम जो मेडिटेशन करते हैं तो किसके साथ मिलने की कोशिश करते हैं? किसके साथ हम मिलते हैं? वो परमात्मा जो बाहर जो शून्य है, इस शून्य उस महाशून्य से मिलता है। मतलब इस आत्मा उस परमात्मा से मिलता है, वो मिलना भी चाहता है। तो ये आत्मा जो इस शरीर में सब कर रहा है, सब हर कुछ। मैं अभी जो वो बोल भी रही हूँ तो मेरा मुंह नहीं बोल रहा है, वो आत्मा शक्ति के हिसाब से शक्ति में बदल के वाक्य होके आ रहा है आपके पास। लेकिन अगर आप समझे कि मेरा मुंह बोल रहा है, नहीं, मुंह तो एक इंस्ट्रूमेंट। कभी स्पीकर बोलता है क्या? उस स्पीकर में गाना आप डालते हो, स्पीकर का वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो आके वैसे साउंड होके प्रोड्यूस होता है। कोई गाता है माइक में तो माइक का गाना आपको सुनाई देता है। अभी अगर बोलो कि ये माइक गा रहा है, तो माइक नहीं गा रहा है, गाने वाला तो सिंगर है। ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे अंदर भी हम जो बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, वो हम अलग है। वो मैं हूँ, वो जो मैं हूँ वो आत्मा है। वो आत्मा करती है हम सब। हम लेकिन वो आत्मा को ये शरीर सोच लेते हैं, तभी हम वो गलती करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। जब वो आप समझ लेते हैं कि नहीं, ये शरीर में नहीं हूँ, आत्मा में हूँ, वो आत्मा करती है, तब आप निष्काम कर, वो कर्ता का भाव जो रहता है, डुअरशिप, तभी आपको आ जाए कि नहीं, ये काम मुझसे करवाया जा रहा है। अगर मुझ पे ये शक्ति ही नहीं होती तो मैं अभी फोन में बात नहीं कर सकती ना। मुझे ज्ञान है, ठीक है, ये श्लोका का ज्ञान, लेकिन मेरे पास वो ज्ञान को व्यक्त करने के लिए वो शक्ति तो होना चाहिए। तो वो शक्ति क्या है? वो शक्ति ही आत्मा है। वो आत्मा ही उस शक्ति के रूप में, हम जब बोलते हैं प्रकृति और पुरुष, बाहर का कोई भी चीज, वो ज्ञान प्रकृति है, लेकिन वो पुरुष जो है वो शक्ति है। ये दोनों मिलने से तो कोई काम होता है। हर पल ये दोनों का मिलन होना चाहिए। ये है मैम। शिरीषा मैम, और आपको कुछ भी डाउट हो तो पूछिए, मैं ट्राई करूंगी एक्सप्लेन मैम करने। वो कौमार्य दस बोलते वही है। हाँ कुमारम, हाँ
कुमारम अर्थात बाल्यावस्था, यौवनम, हाँ, और जरा वृद्धावस्था। हम 3 अवस्थाओं से तो देखते हैं ना। शरीर देखिए जब पैदा होता है, आत्मा का कोई वयस मतलब एज नहीं होता है मैडम। ये शरीर का रहता है, शरीर का परिवर्तन होता है। हाँ, शरीर का परिवर्तन होता रहता है बार बार, हर पल। जो आत्मा उस छोटे से जब एक पहले माँ की गोद में से पैदा हुई और जरावस्था तक पहुंची, उस आत्मा वैसे ही आत्मा है। लेकिन उस आत्मा जिस शरीर में रही है, वो आत्मा की परिस्थितियां बदली हैं, उस आत्मा की परिवर्तन हुआ है। वो परिवर्तन को हम सब स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो हमें आंख में दिखता है, हम आंख से देख सकते हैं। हम क्या कहते हैं, जो देखते हैं उसको ही सच मानते हैं, लेकिन जो आंख से देखते नहीं है, इसीलिए हमें बहुत बार उसे सच नहीं मानते हैं। तो ये ऐसे ही आत्मा इस शरीर, अब मेरे शरीर से पहले भी मेरी आत्मा थी और कोई अवस्था में थी, और दूसरा कोई भी शरीर में था मेरा अवस्था, कहीं भी होगा। फिर इस शरीर की जरूरत जब आई तो इस शरीर में आ गई वो आत्मा। तो इस शरीर पहले से भी थी, अभी भी है, अभी मेरे बाद में भी ये आत्मा रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, यहीं पर ही रहेगी। फिर मेरी जब जरूरत होगी उस आत्मा की, वो फिर कोई ना कहीं पर जब जरूरत होगी, वो आत्मा फिर एक रूप में प्रकट होगी और उसका काम करेगी इस सृष्टि के लिए। सृष्टि को बढ़ाना है ना। इस सृष्टि में हम ना हर एक कड़ी जुड़ा हुआ है, एक कड़ी दूसरे कड़ी से। तो हर एक कड़ी जुड़ने के लिए हमें ना, इसीलिए हम बोलते हैं वी आर एनर्जी थ्रेड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर, अनसीन एनर्जी थ्रेड्स कनेक्टेड विथ ईच अदर बोलते हैं ना। हम कॉन्शियसनेस, एक ही कॉन्शियसनेस के ही ये सब है ना, हम एक ही चैतन्य के ही अंश हैं, इसीलिए तो हम सब एक हैं बोलते हैं। तो इस आत्मा का भी वही स्थिति है, जब ये शरीर 3 अवस्था को पार करती है, 4वां अवस्था भी वैसा भी एक अवस्था है। तो हम इसीलिए मृत्यु होने से हम डरते हैं, क्योंकि हम शरीर को सच मानते हैं, आत्मा को सच नहीं मानते। शरीर तक ही हमारा जीवन ज्ञान है, इसके बाद सोचते हैं कि वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाला वो आत्मा अभी भी है, इससे पहले भी थी और अभी भी है और इससे बाद में भी रहेगी वो आत्मा। लेकिन हमें वो ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए हम दुखी होते हैं कि नहीं, वो तो नहीं है। हम किसको नहीं है बोलते हैं? इस शरीर को नहीं है, ये शरीर नहीं है, लेकिन इस शरीर में होने वाली वो शक्ति तो अभी भी है। तो यहाँ पकड़िए वो बात को, वो शक्ति तो है, हर चीज में एक शक्ति होनी चाहिए ना। तो इस शरीर की वो शक्ति हमेशा होती है, वो 4वां अवस्था है, वो आत्मा की अवस्था, वो हमेशा रहती है। अभी समझ में आया मैम? हेलो, और किसी को? अच्छा बोल दी मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू पद्मा, आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, मे बी वो इररिलेवेंट हो इससे। ना कोई बात नहीं, पूछिए मैम। जैसे हम लोग कोई भी काम करते हैं तो काम के लिए हम करता नहीं है, ये तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आ गए वो समझ गए, वो करता नहीं है। और हम लोग कोई ना कोई लेसन प्लान करके ही आते हैं कि हमने कौन से लेसन सीखने हैं। तो जैसे जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग रेपिस्ट हैं, तो वहां पे भी करता तो वो नहीं है, करता मतलब उसकी शक्ति तो आत्मा ही के थ्रू आ रही है। तो इसका मतलब जो हम उनके लिए पनिशमेंट डिक्लेयर करते हैं या उनको समाज से अलग करने के लिए कहते हैं, तो इसका मतलब वो चीज गलत है। नहीं, बोलिए मैम। क्योंकि वो तो लेसन सीखने के लिए आया है और उसने ये लेसन सीख के जाना है। तो ये लेसन सीखने के लिए भी एनर्जी जो है वो तो आत्मा से ही मिल